जो सीसास पोर्टल हम आज लॉन्च कर रहे हैं, दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। हम आज फेज 1 लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बच्चे अपनी बेसिक प्रोफाइल भरेंगे, सबमिशन ऑफ देयर क्लास 10th 12th मार्क्स। हम उनकी नेम, फोटोग्राफ और सिग्नेचर ऑटो इंटीग्रेट कर लेंगे CUET UG के प्लेटफॉर्म से, और ये नॉन एडिटेबल होंगी। इस फेज में बच्चे अपनी एकेडमिक इन्फॉर्मेशन, अगर वो EC और स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन, सारे जो डॉक्यूमेंट्स से दस्तावेज है उसे अपलोड करेंगे और पेमेंट ऑफ फीस करेंगे। ये CUET UG का जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो मैंडेटरी होगा इस पोर्टल पे एंटर करने के लिए। फीस में कोई चेंज नहीं है। 250 rupees for UR, OBC and EWS and ₹100 for SC, ST and PWD. In case a candidate wish to apply for supernumerary quota of EC and sports, then they have to pay an additional amount of ₹100. And if the candidate wish to apply for a practical या performance based या audit या sports style जो program जैसे BFA Bachelor of Science Education in Sports and Health या हमारे म्यूजिक के प्रोग्राम, तो 400 रुपये एक्स्ट्रा उन्हें पर प्रोग्राम के लिए देने होंगे। ये कोई चेंज नहीं है, पिछले साल जैसा ही है। जब CUET का रिजल्ट आ जाएगा फिर हम फेज 2 इमीडिएटली उसके बाद लॉन्च कर देंगे। वी विल कंसिडर द नॉर्मलाइज स्कोर एज द NTA इज सेइंग, then the University of Delhi will expect the students to do subject mapping. They will then check the eligibility and program and college wise preferences they will have to input on their dashboard, and finally the form will be submitted. This is as last year. So important aspect जो हमने पिछले साल किया था वो इस साल भी we are continuing, that the subject studied in class 12th and CUET subject should map. At least 50% of the syllabus should map. बच्चे वही सब्जेक्ट यहाँ भी, और ये जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं, हमेशा ही देते आ रहे हैं, कि जो आपने क्लास 12th में सब्जेक्ट्स पढ़े थे वही सब्जेक्ट आप CUET में भी दीजिए, और वो सब्जेक्ट आपको अब मैप करने पड़ेंगे। प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटीज आर ऑलमोस्ट सेम, बट देर आर कपल ऑफ माइनर चेंजेस वी हैव डन टू मेक इट मोर इलैबोरेट, क्योंकि CUET में कुछ सब्जेक्ट्स ड्रॉप हुए, कुछ लैंग्वेजेस ड्रॉप हुई और कुछ डोमेन सब्जेक्ट्स ड्रॉप हुए, तो हमने यहाँ पर अपनी एलिजिबिलिटीज़ और ज़्यादा इलैबोरेट कर दी ताकि कोई भी बच्चा अब छूट ना पाए। जैसे कि मोस्ट ऑफ द जो हमारे ऑनर्स प्रोग्राम्स है उसमें पिछले साल सिर्फ एक एलिजिबिलिटी होती थी, 1 लैंग्वेज एंड एनी 3 सब्जेक्ट्स फ्रॉम लिस्ट B. We have added another eligibility which is any 2 languages from list A and any 2 subjects. So overall जो कॉम्बिनेशन है वो 4 उनसे बनेंगे, या 1 भाषा और 3 सब्जेक्ट, या 2 भाषा और 2 अन्य सब्जेक्ट। जहाँ भी बच्चे का स्कोर बेटर होगा उसे हम कंसिडर करेंगे फॉर एलोकेशंस। जो हमारे साइंस के प्रोग्राम थे वहाँ पर एक पिछले साल तक एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती थी कि 30% लैंग्वेज में उन्हें लेना चाहिए, हमने वो ड्रॉप कर दिया है। नाउ द कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर साइंस कोर्सेज विल ओनली बी कंसिडर्ड फॉर मेरिट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स ऑब्टेन्ड इन PCM और PCB as it may be, but the candidates are required to appear in the language. So language has become only an appearing component, not a deciding or a eliminating factor. BCom honors, there is no change in the eligibility. The candidates can opt for either mathematics or account as a mandatory subject, and another language or any 2 other subjects from list B. After we close our phase 2, then we will open our platform for displaying the simulated ranks जो उस समय की preferences पे होंगी. The simulated ranks will be based on the marks and the preferences that the students will give at the closure of phase 2. Again, the candidates will have another opportunity to add, delete, reorder their preferences, and the last saved preferences after the announcement of simulated ranks will then be considered for allocations. So the allocations will be based on our criteria, program specific merit, the category of the subject, and the availability of seats. The process remains the same. The candidate, when they get a seat, they will have to accept it, and then the application will go to the college. The college will see the documents, they will raise a query if they have to, और उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट या अप्रूव करेंगे। अगर अप्रूव करेंगे तो फिर बच्चे फीस देंगे। रिजेक्ट से पहले कॉलेजेस को हमने बहुत सारे पॉइंटर्स दिए हैं कि आप रिजेक्ट का रीज़न भी बताएंगे ताकि बच्चे को भी मालूम हो। हम 2-3 चांसेस तब भी देंगे कि रेज अ क्वेरी के थ्रू अगर डॉक्यूमेंट्स में कुछ कमी है तो वो ठीक कर लें, और उसके बाद ही रिजेक्शन बहुत सोच समझ के करें इफ़ दे हैव टू। Then if the student doesn't take any action, it will be taken as a decline of seat.
If they opt for an upgrade, if they opt for a seat, then they will get a provision to upgrade.